दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243S, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमिटीज एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमिटीज एक्सेट्रा। वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में। ये 243S अनुच्छेद यानी 243 धा, धनुष वाला धा, ये बताता है कि वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना कैसे होगी, उसके बारे में। 243S says Constitution and composition of wards, committees, etc. Number 1. There shall be constituted wards, committees consisting of one or more wards within the territorial area of municipality having a population of 3 lakhs or more. Number 2, the legislature of a state may by law make provision with respect to A. The composition and the territorial area of a ward committee. A. The composition and the territorial area of a wards committee. B. The manner in which the seats in a wards committee shall be filled. Number third, a member of a municipality representing a ward within the territorial area of the wards committee shall be a member of that committee. Number 4, where a wards committee consists of A. One ward, the member representing that ward in the municipality, or B. Two or more wards, one of the members representing such wards in the municipality elected by the members of the wards committee shall be the chairperson of that committee. Number 5, nothing in this article shall be deemed to prevent the legislature of a state from making any provision for the constitution of committees in addition to the wards committee. 243T. 243T article says about the reservation of seats, स्थानों के आरक्षण के बारे में बताता है। Number 1, seats shall be reserved for the scheduled castes and scheduled tribes. Number 1, seats shall be reserved for the scheduled castes and scheduled tribes in every municipality, and the number of seats so reserved shall vary nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality as the population of the scheduled castes in the municipal area or of the scheduled tribes in the municipal area varies to the total population of that area, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality. Number 2, not less than 1/3 of the total number of seats reserved under clause 1 shall be reserved for women belonging to the scheduled castes or as the case may be the scheduled tribes. Number 3, not less than 1/3 including the numbers of the seats reserved for women belonging to the scheduled castes and scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct election in every municipality shall be reserved for women, and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality. Number 4,
Offices of chairpersons in the municipalities shall be reserved for the scheduled castes and scheduled tribes and women in such manner as the legislature of a state may by law provide. Number 5. The reservation of seats under clauses 1st and 2nd and the reservation of offices of chairpersons other than the reservation for women under clause 4th shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334. Number 6. Nothing in this part shall prevent the legislature of a state from making any provision for reservation of seats in any municipality or offices of the chairpersons in the municipalities in favor of the backward class of citizens. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ दोनों अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 243 धा वार्ड समितियों का गठन और संरचना। वार्ड समितियों का गठन और संरचना के बारे में 243 धा बात करता है। क्या? अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 243 धा वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में बताता है। ऐसी नगर पालिका के जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। नंबर 2 राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नंबर का वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत नंबर का उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति के स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। नंबर 3 वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा। नंबर 4 जहां कोई वार्ड समिति का एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य या खा 2 या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा उस समिति का अध्यक्ष होगा। नंबर 5 इस अनुच्छेद की किसी बात से ये नहीं समझा जाएगा कि वे किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है यानी रोकती है। अनुच्छेद 243 ना स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 243 ना स्थानों के आरक्षण के बारे में बताता है। नंबर 1 प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। नंबर 2 खंड 1 के अधीन नंबर 2 खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित जो उनकी अनुसूचित जातियों की जो स्त्रियां हैं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की जो स्त्रियां हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगे। नंबर 3 प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगर पालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। नंबर 4 नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे
जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। इसके लिए क्या होगा, जो राज्य का विधानमंडल है वो विधि के द्वारा उपबंधित करेगा, जिसमें नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे। नंबर 5, खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण। क्या है, नंबर 5 खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण, सीट्स का जो सीट्स हैं उनका आरक्षित करने का, और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पदों का आरक्षण, जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, जो स्त्रियों के आरक्षण से अलग हैं। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। नंबर 6, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। दोबारा पढ़ देती हूँ। नंबर 6, इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को, इस भाग की जो कोई भी बात है वो किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के, जो पिछड़े हुए बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, उन पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में किसी भी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी जो भी वो उपबंध बनाना चाहें उन पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जो किसी भी वर्ग से आते हों, यानी किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के, यानी नगरपालिकाओं में स्थानों और या फिर नगरपालिकाओं में जो अध्यक्ष हैं उनके पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से मना नहीं करेगी। कौन? विधानमंडल का जो कानून, उसकी बात की जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी 243 पा नगरपालिकाओं की अवधि याद के बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।